السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ میں تھک گئی ہوں۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں سیکنڈ، سوچنے میں منٹ، سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ غم میں تنہا اور خوشیوں میں جمانا ساتھ ہوتا ہے۔ اتنے عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کا دکھ اپنے دل میں سما لیتے ہیں، لیکن اپنے غم صرف اپنے رب کو ہی بتاتے ہیں۔ زندگی میں چاہے حاصل کر لیں، بس اتنا خیال رکھیں کہ آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو نہ توڑتا ہو۔ گزرے چپ سے بڑی کوئی بدباب تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا رب کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ پاک کا معاملہ بن جاتا ہے۔ کسی کو جلیل کرنے سے پہلے خود جلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ پاک کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں، سہ جانے والوں سے ڈرو کہ ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ جب معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ پاک کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے، مگر پہچان اپنے دم پر بنتی ہے۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے دیکھ نہیں پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، پر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ ایسے لوگوں کو کبھی اپنی زندگیوں میں شامل نہ کریں جنہیں آپ تب میسر ہوں جب انہیں کوئی اور میسر نہ ہو۔ اپنی نیکی پر نہ فخر کریں، نہ ذکر کریں، بس رب کی توفیق پر شکر ادا کریں۔ جن کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہو ان کے پاس روٹنے اور ٹوٹنے کا وقت نہیں ہوتا۔ زمین کے اوپر ٹھیک رہو گے تو زمین کے نیچے بھی ٹھیک رہو گے۔ ایک سا وقت کبھی بھی نہیں رہ سکتا۔ دن بگڑتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ بغاوت ہمیشہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو حلال و حرام کی تمیز ہو، برے بھلے کی پہچان ہو۔ منافق تو ہر رنگ میں سج جاتے ہیں اور ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ کسی دوسرے کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ یا اللہ پاک، موت سے ڈر نہیں، قیامت سے بھی نہیں، شاید تیرا سامنا کرنے سے ڈر لگ رہا ہے۔ میں ان اعمال کے ساتھ تیرے سامنے نہیں ہونا چاہتی۔ اے اللہ پاک، میرے مرنے سے پہلے ہی سارے گناہ بخش دے، بے حساب مغفرت فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ دنیا اتنی بری بھی نہیں ہے اگر اسے آخرت کمانے کے لیے خرچ کر لیا جائے۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ پاک 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملواتا۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ زندگی کا سب سے مشکل کام اپنا علم پر عمل کرنا ہے۔ جھوٹ کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ رشتہ کوئی بھی ہو، خوبیاں اور خامیاں سمیت برداشت کر کے نبھایا جاتا ہے۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پر ہو شکر۔ الحمدللہ، وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ رب کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جائیں جیسے کہ وقت عام دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ خاموشی میں ہی راحت ہوتی ہے۔ لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے، مگر انسان ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ سڑکوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ شکر ہے کہ نیت کا اثر چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وعدے تو نہیں کرتے مگر بہت کچھ نبھا جاتے ہیں۔ بہترین فینس چاہتے ہو تو سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دو۔ خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ پاک ایسی سوچ عطا کرے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میں تمہارا گمان ہوں، تم جیسا سوچو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ اللہ پاک دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا ملنا اسے بے حد پسند آ جائے۔ قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم
उसे बदल नहीं सकते, लेकिन यह तुम्हें बदल सकता है। अपनी जिंदगी के किसी दिन पर कभी अफसोस ना करें। अच्छे दिन खुशियां देती हैं, बुरे दिन तजुर्बा देती हैं, बदतर दिन सबक देती हैं और बेहतरीन दिन यादें देती हैं। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसकी इज्जत नफ्स को शदीद ठेस पहुंची है। जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, मगर जो इंसान पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिनका हम बहुत शिद्दत से इंतजार करते हैं, मगर वो लम्हे जिंदगी में तब आते हैं जब उन लम्हों की जरूरत नहीं रहती। बेफायदा है जिंदगी में लोगों का हुजूम, पुरखुलूस जो मिल जाए तो एक शख्स ही काफी है। जिंदगी की उलझनें सुलझ जाती हैं, अल्लाह पाक रास्ते निकाल देता है। उसकी हिकमत हमारी सोच से परे है। जरूरत सिर्फ यकीन की है, ईमान की पख्तगी की है। जिंदगी के जिस मुकाम पर हो उसे तस्लीम कर लो, और यह भी तस्लीम कर लो कि यहाँ तुम हमेशा नहीं रहोगे। मजबूत तो वो है जो रोने के बाद अपने आप को खुद समझाए कि अल्लाह पाक है ना, सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी बहुत छोटी सी है, कोशिश करें कि किसी का मान, एतबार और यकीन न टूटने पाए। वक्त तो गुजर ही जाता है, लेकिन दी हुई तलकियों के नक्श हमेशा बाकी रह जाती हैं। अपनी जिंदगी के बदतर दौर से गुजरते वक्त एक अच्छी बात जो होती है वो यह कि आप आखिरकार उन लोगों के असली चेहरों को पहचान लेते हैं जिनका यह दावा होता है कि वो आपकी परवाह करते हैं। जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती। जिंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खुलूस से, अपनेपन से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। खुद को ऐसा बनाओ कि जब तुम वहां हो तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? तुम बदला न लो, माफ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी। दुनिया की खूबसूरत हकीकत आंखों से नहीं दिल से महसूस की जाती है। बस फिर जब मैंने दिल से खूबसूरत हकीकत को महसूस करना चाहा तो मैंने अपने रब से ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं पाया। जिंदगी ऐसे जियो कि रब को पसंद आ जाए। दुनिया वालों की पसंद तो पलक झपकने से पहले बदल जाती है। जब तुम्हें लगे तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहां वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। दुनिया में दो काम बहुत मुश्किल हैं, एक उसके साथ रहना जिससे मोहब्बत ना हो, दूसरा उसके बगैर रहना जिससे मोहब्बत हो। जब तुम्हें महसूस हो कि तुम तबीयत को जिक्र खुदा से सुकून महसूस होता है तो समझ लो अल्लाह पाक तुम्हें पसंद करता है। नसीब हार जाता है लेकिन दुआ हमेशा जीत जाती है। बस यकीन के साथ अल्लाह पाक से मांगते रहो, वो रब तुम्हें मायूस नहीं होने देगा। हर इंसान के हाथों तुम्हारा टूटना इसलिए भी जरूरी था कि तुम जान सको कि अल्लाह पाक के सिवा कोई अपना नहीं होता। अल्लाह पाक की अता पर अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी खताओं पर अस्तगफिरुल्लाह कहना अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। इंसान उम्मीदों से भरा एक जिद्दी परिंदा है जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। लोग बदबाब अमाल से नहीं, जो लोग अल्लाह पाक पर तवक्कुल करते हैं और तकवा की राह इख्तियार करते हैं, अल्लाह पाक खुद उनके लिए रास्ते बना देता है और ऐसे असबाब पैदा फरमा देता है जो बंदों के वहम और गुमान में भी नहीं होते। नफरत को हजार मौके दो कि वो मोहब्बत बन जाए, लेकिन मोहब्बत को एक मौका भी ना दो कि वो नफरत बन जाए। अगर आप किसी और की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने आप को जाया कर रहे हैं। खूबसूरत अल्फाज हमेशा सच नहीं होते और सच्चे अल्फाज हमेशा खूबसूरत नहीं होते। छोटे छोटे कामों को अंजाम देना बड़े बड़े कामों की मंसूबाबंदी से कहीं ज्यादा बेहतर है। दिखावे की खूबियां खामियों से बदतर हैं। जब इंसान समझता है कि वो गलत भी हो सकता है तो वो ठीक होने लगता है। एक समझदार आदमी सब कुछ नहीं जानता, सिर्फ बेवकूफ हर बात जानते हैं। जिंदगी के गार में आमाल के चिरागों में सबसे रोशन चिराग अल्लाह पाक के खौफ का है। सजदे लंबे कीजिए, मुश्किलें छोटी हो जाएंगी। इंशाअल्लाह ऐ मौत तू तब आना जब मैं सजदे में हूँ, तुझे आने में मजा आ जाए और मुझे जाने में। ना कर नसीब से इतने गिले ऐ इंसान, जब अल्लाह पाक राजी होता है तो हर चीज मिल जाती है। वक्त को पैदा करने वाले को वक्त देकर देखो, वो तुम्हारा वक्त बदल देगा। वक्त सिखा देता है इंसान को जीने का हुनर। फिर क्या नसीब, क्या मुकद्दर और क्या हाथ की लकीरें। किसी की असलियत सामने आना भी अल्लाह पाक की नेमत है। 3 लोगों को कभी न भूलना, जिसने मुश्किल में साथ दिया, जिसने मुश्किल में साथ छोड़ा, जिसने मुश्किल में डाला। जिंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीम मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। अक्सर सस्ते लोग हमें जिंदगी के महंगे सबक दे जाते हैं। खामोशी तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब है और मुस्कुराहट हर हालात का बेहतरीन रद्द अमल है। कमजोर इंसान दूसरों से लिया हीरा भूल जाता है लेकिन अपना दिया हुआ पत्थर याद रखता है।
जिंदगी में हमेशा उन लोगों का चुनाव करें जिनको इज्जत देने पर वो खुद से बढ़कर आपको इज्जत दें। यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। जो लोग आपको अपनी औकात दिखाएं तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि वही उनकी औकात है। धोखे लोग कभी इज्जतदार नहीं हो सकते। एक चमचा अगर दूसरा मुनाफिक लोगों का बस नहीं चलता, वरना राह चलते लोगों को रोक कर कहें कि हम तुमसे बेहतर हैं। उस आदमी की इज्जत करो जो तुम्हारी इज्जत तुम्हारी गैर मौजूदगी में करे। इज्जत बहुत महंगी चीज है, उसकी उम्मीद सस्ते लोगों से मत रखें। उस शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिस शख्स को अपने अंदर कोई गलती नजर नहीं आती। किसी को आंसू देने से पहले यह सोच लेना क्या उसके आंसू तुम्हें सुकून से जीने देंगे या नहीं। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वो अल्लाह पाक के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिलों की आह अर्श तक जाती है। हालात मुझे कमजोर करते चले गए और मेरा अल्लाह पाक मुझे पहले से ज्यादा मजबूत करता रहा। मेरी चुप मेरी हार नहीं है, मेरा सब्र मेरी वो ताकत है जो मेरे अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात दो कौड़ी की रह जाती है। बात सिर्फ एहसास की है, किसी को 2 पल में हो जाता है और किसी को सदियों बाद भी नहीं होता। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इज्जत के। आंसू वो खामोश दुआएं हैं जो सिर्फ रब ही सुन सकता है। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है, कभी बर्दाश्त करके और कभी कुछ नजरअंदाज करके। माँ बाप के साथ तुम्हारा सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते तुम हो लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। अपने आंसुओं को इतना महंगा कर दो कि कोई उन्हें खरीदने की कोशिश ना करे, और अपनी मुस्कुराहट को इतना बेमोल कर दो कि हर कोई उसको पाने की चाहत करे। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान जिंदगी में हमेशा सबसे अकेला रह जाता है। जिंदगी से इतना प्यार ना करो, यह किसी से वफा नहीं करती। मौत को कभी मत भूलो, यह किसी को धोखा नहीं देती। किस्मत और दिल की आपस में कभी नहीं बनती। जो लोग दिल में होते हैं वो किस्मत में नहीं होते। राबते बता देते हैं कि दिल में कितनी कदर है, वरना कहने को तो सभी अपने होते हैं। वक्त तो गुजर ही जाता है, याद रह जाता है तो अच्छे और बुरे वक्त में अपनों का रवैया। रिश्तों का न होना इतना तकलीफ दे नहीं जितना कि रिश्तों का होते एहसास का मर जाना है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपनों में अपनों को तलाश करना है। छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक दिया। रिश्ता सबसे रखो लेकिन उम्मीद किसी से नहीं। जब भी दुआ मांगो तो अपनी औकात देखकर नहीं बल्कि अपने रब की शान देखकर मांगो। जिंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती हैं, जब भी लगती है या किसी की असलियत दिखा देती हैं या कुछ न कुछ सिखा देती हैं। जिंदगी रोज कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन बुनियादी चीज यह है कि इंसानों से तवक कम से कम रखें और ऊपर जो जात है उस पर तवक रखें। दुनिया में उससे बढ़कर कोई और अवार्ड नहीं हो सकता। लोग आपकी तरबियत की वजह से आपके वालिदैन की तारीफ और इज्जत करें। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। दुनिया में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई 2 को 1 कर देती है और कैंची 1 को 2 कर देती है। खुश रहें, खुशियां बांटे। वक्त का जवाब हमारे जवाब से हमेशा होता है, और वक्त सिर्फ उस वक्त जवाब देता है जब हम किसी को ज्यादती का जवाब देने के बजाय सब्र से काम लेते हैं। जिन मंजिलों की फिक्र हो, जिनको मंजिलों की फिक्र हो, वो लज्जत देखकर रुकते नहीं, अपना सफर जारी रखते हैं। गम और परेशानी हर एक की जिंदगी का हिस्सा है। वह जिसने परेशानी पर कदम रख लिया वो जीत गया, और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। कोशिश करें जहां रहें वहां अच्छा किरदार, अच्छा अखलाक और खूबसूरत यादें छोड़ जाएं। लोगों की खिदमत करें, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, क्योंकि आप तो चले जाएंगे मगर आपका किरदार, आपका अखलाक, आपकी खूबसूरत यादें बाकी रह जाएंगी। कोई कितना बुरा है इसका पता तब चलता है जब उसे कोई ओहदा, ताकत या दौलत मिलती है। सिखाने के लिए किताब है और जिंदगी है, बस तुम्हें सीखने का शौक हो। अपने वालिद के लिए अगर कुछ चाहते हो तो बस इतना कीजिए कि कोई आपकी वजह से उनकी तरबियत पर उंगली ना उठाए। सबसे अच्छी हिजरत गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ आना है। जो शख्स अपनी सारी जिंदगी लगाकर भी यह 3 चीजें न सीख सका वो जाहिल है, और वो 3 चीजें यह हैं ईमान, अखलाक और एक दूसरे के साथ हमदर्दी। जितना नेकी की राह पर चलोगे उतनी अल्लाह पाक की मदद आएगी, जितनी अल्लाह पाक की मदद आएगी उतना कामयाब हो जाओगे। चंद दिन रब के कानून की पाबंदियां सह लेना हमेशा की दोजख की खैर से बेहतर है।
कब्रिस्तान की खामोश कब्रों से इबरत लो और उन्हें देखा करो, गुनाह से बचने में आसानी होगी। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है, अगर उसका साथ छोड़ जाए तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, पाक है वो रब जो बर्दाश्त से बढ़कर दुख नहीं देता, मगर जब सुख देता है तो इंसान की औकात से बढ़कर देता है। दुनिया एक दरिया है जिसके मुसाफिर लोग हैं, जिसका किनारा आखिरत और जिसकी कश्ती तकवा है। लंबी उम्मीदों से दूर रहा करो, क्योंकि वो तुम्हारे पास मौजूद नेमतों को भी हकीर बना देती है। अगर मौत के बाद अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हो तो मरने से पहले अपने रब की मर्जी की जिंदगी गुजारो। कुछ लोग इंसानों के समझाने से नहीं बल्कि अल्लाह पाक की बेआवाज लाठी खाने से ही समझते हैं। दिलों पर राज सच्चाई करती है, दिखावे नहीं। जहां भी रहें मुखलिस रहें। मुझे लगता है कि कामयाबी की एक सूरत यह भी है कि हम किसी की दुआओं में रह जाएं, और सबसे बदतर खसारा यह है कि हम अपने रवैया और आजादी की दुआओं से निकल जाएं, मनफी हो जाएं। कोशिश करें कि अपने अखलाक अच्छे रखें ताकि आप बिना किसी वजह के भी दुआओं में याद रह जाएं। अल्लाह पाक के कुछ बंदे ऐसे हैं जिन अल्लाह पाक बंदों की जरूरत पूरा करने के लिए खास तौर पर नेमतों से नवाज देता है। बदगुमानी में इतनी ताकत है कि इंसान का जहनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ एक दूसरे से जुड़े ताल्लुक को चंद मिनटों में हड़प कर जाती है। जिंदगी में हालात बदलते ही लोगों के रवैये बदल जाते हैं। शायद इंसान अपने हालात बदलने की कोशिश इसलिए करता है ताकि लोगों के रवैये बेहतर हो सके। क्या कर लेंगे इंसान? ज्यादा से ज्यादा पीठ पीछे बुराइयां और साजिशें। लोगों के पीछे जाओगे, वजह तलाश करोगे, खुद ही को बेसुकून करोगे, अपना वक्त जाया करोगे, सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। बेशक वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। जो शख्स बिना किसी वजह से आपसे उकता जाए और नजरअंदाज करे तो मेरी नजर में आपका हक बनता है कि आप शुक्राने के नवाफिल अदा करें। अल्लाह पाक ने आपके सामने उन कमजोर लोगों को जाहिर किया है जिन पर आप मोहब्बतें लुटा रही हैं। वो इस काबिल भी नहीं होते कि उनकी जिंदगी में कभी बेलोज मोहब्बतें नसीब हो। रिश्तों की रस्सी कमजोर तब होती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद बना लेता है। अच्छी सोच और अच्छी नीयत वालों को सुकून ढूंढना नहीं पड़ता, उनके दिल हमेशा किसी निखरी सुबह की तरह उजले और पुरसुकून रहते हैं। सिर्फ गलत होने पर वजाहत नहीं दी जाती, कई बार हम वजाहत इसलिए देते हैं कि सामने वाला हमें आजीज होता है। बोझ सिर्फ गलतियों का नहीं होता, चाहतों का भी होता है। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हो, आप उसे अपनी जिंदगी का वो पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आता। इंसान की जिंदगी तो इस कदर मुख्तसर है कि वो मोहब्बत का भी हक अदा नहीं कर सकता। ना जाने लोग नफरत के लिए वक्त कहाँ से निकाल लेते हैं। जितने सजदे जवानी में कर सकते हो कर लो, क्योंकि मैंने बुढ़ापे में लोगों को अक्सर सजदे के बगैर नमाज पढ़ते देखा है। हमसे हसद करने वाले भी कमाल करते हैं, महफिलें अपनी सजाते हैं, तस्करा हमारा करते हैं। अगर आपके साथ नाइंसाफी और ज्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो जात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं फरिश्ता समझते हैं, उनके काम भी फरिश्तों जैसे हैं, यानी दूसरों के और बुराइयों का हिसाब रखना। मेरी चुप मेरी हार नहीं है, मेरा सब्र मेरी वो ताकत है जो मेरे अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। सब्र करो वहां भी जहां सब्र करना नामुमकिन लगे और तवक्ल रखो अल्लाह पाक पर, फिर देखो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए कैसे रास्ते खोलता है। बेशक वो सब्र करने वालों के साथ है। जिंदगी जब भी रुलाए तो समझ लेना गुनाह माफ हो गए, जिंदगी जब भी हंसाए तो समझ जाना दुआ कबूल हो गई। माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी, रब खुद रोएगी मगर तुम्हें हंसा देगी। कभी भूल कर भी न माँ को रुलाना, एक छोटी सी गलती पूरा अर्श हिला देगी। दिल से दुआ है कि आप जिन दुआओं के लिए हाथ उठाएं फरिश्ते फौरन उन्हें अर्श इलाही तक ले जाएं और आपके हाथ गिरने से पहले वो दुआएं कबूल हो जाएं। लोगों को दूसरों के बदले हुए रवैये नजर आती हैं और अपनी हरकतों का पता नहीं होता जो इस तब्दीली की असल वजह होती है। ऐसे मुनाफिक लोगों के साथ रहने से 1000 दर्जा बेहतर है कि बंदा अकेला रह ले, जो ऊपर से तो बहुत प्यार जताते हैं और अंदर ही अंदर जड़ें काट रहे होते हैं। कुछ लोग बेवकूफ नहीं होते, वो खूबसूरत दिल वाले आला जर्फ होते हैं। वो आपके रवैये को समझ रहे होते हैं, आपकी मुनाफिक जानते हैं, आपके झूठों से वाकिफ होते हैं, वो आपकी चालों से वाकिफ होती हैं। वो जानते हैं कि आप उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, फिर भी नजरअंदाज करके आपसे अच्छे से पेश आते हैं, क्योंकि वो अच्छे होते हैं। किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं, सब तकदीर पर छोड़ दो। जिन्होंने आपके लिए गड्ढा खोदा है वो खुद ही उसमें गिरेंगे, और अगर वक्त ने वफा की तो वही लोग आपको अपने हाथों से
खोदे गड्ढों में गिरते नजर आएंगे। ज्यादती उतनी ही करो जितनी खुद पर आए तो झेल सको, और सब्र उतना ही समेटो जितना खुद रब का अजाब बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो, क्योंकि सब्र करने वाले का मामला अल्लाह पाक का मामला बन जाता है। चुप से बड़ी कोई बदबाप लेती है और बेशक उसका इंतकाम बहुत बुरा होता है। एक कुदरत का कानून है कि जो इंसान किसी को इस्तेमाल करके और उसे धोखा देकर अपनी खुशियां हासिल करता है, वो कभी न कभी खुद उससे भी ज्यादा दूसरों के हाथों इस्तेमाल होकर जिंदगी में दुख सहता है। जब आपके साथ कोई बुरा करे या आपके लिए बुरा सोचे तो उसे अपने अमल में मसरूफ रहने दें। आपको यह यकीन होना चाहिए कि आपके रब को ना तो नींद आती है और ना ही और नेमतों में सबसे बड़ी नेमत जहनी सुकून है। उन लोगों से हमेशा दूर रहें जो आपके जहनी सुकून को तबाह करती हैं। जब दिल में मैल, तबीयत में जिद और लफ्जों में मुकाबला आ जाए तो तीनों जीत जाते हैं, बस सिर्फ ताल्लुकात और रिश्ते हार जाते हैं। अगर आराम और सुकून से रहना चाहते हो तो हर चीज में मुख्तसर रहना सीखें। गुफ्तगू में, एहसासात में और कभी कभी लोगों के चुनाव में भी राब्ते बता देते हैं कि दिल में कितनी कदर है। कहने को तो सभी अपने होते हैं। दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्बीह बन जाना अल्लाह पाक की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का एक इशारा है, और दुआएं मांगते रहो, उसे अपने बंदे के उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। अच्छा सोचे और अच्छा बोले, क्योंकि बदगुमानी और बदजुबानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान की हर कमाल को जवाल में बदल देती है। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो आपके पास होता है। रिश्तों को मजबूत रखने के दौरान जब आप गलत हो तो अपनी गलती तस्लीम करें, जब आप सही हो तो सिर्फ खामोशी इख्तियार करें। रब से जब भी दुआ मांगो तो मुकद्दर मांगो, अकल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अकल वालों को मुकद्दर वालों के दर पर देखा है। तीन चीजें ईमान को तबाह कर देती हैं: अमीरों की महफिलें, औरतों की सोहबत, जाहिल से बहस। तीन तरीकों से परेशानी खुशी में बदल जाती है। खामोश रहना, खामोश रहने से परेशानी कम हो जाती है। सब्र करना, सब्र करने से खत्म हो जाती है, और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब अपने बंदे की उस बात से खुश होता है जब वो कहता है कि अल्लाह पाक मेरे गुनाह बख्श दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई और जात नहीं है जो गुनाहों को माफ कर सके। जो दुआ कबूलियत में वक्त लेती है फिर वो कबूल हो जाने पर वक्त ही बदल देती है। आज अगर जिंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह पाक ने किया है। अल्लाह पाक से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह पाक ने तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा। जिसका जज्ब देखना हो तो उसे इज्जत दो, फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, नियत देखनी हो तो उसे खर्च दो। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। दुनिया की दौलत अल्लाह पाक उन्हें भी देता है जिन्हें वो पसंद नहीं करता, जबकि दीन की दौलत अल्लाह पाक सिर्फ उन्हें देता है जिन्हें वो महबूब रखता है। अपने रब को यह ना बताओ कि तुम्हारी मुश्किल कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी मुश्किल को यह बताओ कि तुम्हारा अल्लाह पाक कितना बड़ा है। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत है। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से अल्लाह पाक। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है और खूबसूरत अखलाक इंसान की जिंदगी। इन चार गलतियों से बचो। शरीफ को बेवकूफ मत समझो, मक्कार को अक्लमंद मत समझो, कातिल को बहादुर मत समझो, मालदार को बड़ा आदमी मत समझो। हालात की तारीखियों से ना घबराओ, अल्लाह पाक पर भरोसा रखो और याद रखो सबसे ज्यादा बारिश तारीख तरीन बादलों से ही बरसती है। दुआ से पहले यकीन करना सीखो, बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले सोचना सीखो, इरादा मुलतवी करने से पहले एक और बार कोशिश करना सीखो और मरने से पहले जीना सीखो। रब की राह में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो, क्योंकि रब ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। आजमाइश तो उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह पाक चाहता है, और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह पाक को चाहते हैं। जब आपको अल्लाह पाक की मसले समझ आने लगती है फिर आपका दिल जिद करना छोड़ देता है। अपने फैसलों को अल्लाह पाक पर छोड़ दो, मायूसी तुम्हें छोड़ देगी। आँख की नमी बहुत बड़ी रहमत है, अल्लाह पाक से आपका राब्ता बढ़ा देती है। शुक्रगुजार हो जाएं उन लोगों का जो आपको आपकी आंखों की नमी अता कर गए। शुक्र अदा करें उस तकलीफ का जिसने आपकी आंखों को पूनम कर दिया। अल्लाह पाक इम्तिहान लेता है ताकि साबिर रहो, आजमाइश में डालता है ताकि उसका शुक्र गुजार रहो, रुलाता है ताकि साबिर रहो, चुप भी करवाता है ताकि उस पर यकीन रखो। जब इंसान किसी रंज और मुसीबत में अल्लाह पाक से सिकवा करता है तो अल्लाह पाक फरमाता है, इस मुसीबत का सिकवा बेजा है, यह मुसीबत तो तुझे मेरी तरफ मुतवज्जो कर रही है। तो ये सिकवा तो मेरी उस नेमत से होना चाहिए जो तुझे मुझसे बेनिस करती है। दूसरों के पास नेमतें देखकर खुद को कमतर ना समझे, यह तो रब की तकसीम है। आप बस यह करें कि जिस भी
لیول پر ہیں اس سے آگے بڑھیں۔ عبادت کا تعلق اللہ پاک سے ہے، لوگوں سے نہیں، اس لیے کوئی بھی عبادت اللہ پاک کے لیے کی جائے گی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ کوئی بھی اپنی زندگی سے 100% خوش نہیں، لیکن ان لوگوں کو سکون ضرور حاصل ہوتا ہے جن کے جینے کا مقصد اللہ پاک ہوتا ہے۔ تم اپنے آپ پر اتنی نقید کرو کہ لوگوں کو تم پر تنقید کرنے کا موقع نہ ملے، اور اپنے آپ کو اتنا حوصلہ دو کہ لوگوں کو تمہیں حوصلہ دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ یعنی ہر حال میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی سب سے پہلی خود کوشش کرو۔ تمہیں جو کچھ بھلائی مل رہی ہے کہو کہ اللہ پاک کی طرف سے ہو رہی ہے، یہ نہ کہو کہ میری محنت سے مل رہی ہے، کیونکہ ایک دن آئے گا جب تمہاری محنت ساتھ چھوڑ جائے گی، گھر والے اور دوست بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، جوانی بھی ساتھ چھوڑ جائے گی، اللہ پاک اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ لوگ حاجت کر کے آپ میں سے عیب نکال لیں گے اور تمہیں نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر آپ باقی کامیاب ہیں تو آخرکار آپ کی کامیابی ہی بولے گی، اور لوگ آپ کی کامیابی کے آگے بے بس ہوں گے۔ طوفان سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے، مکان وہی گرتے ہیں جو اندر سے مضبوط نہیں ہوتے، حالات سب کے اوپر آتے ہیں، ٹوٹتے وہی ہیں جو اندر سے مضبوط نہیں ہوتے۔ اگر آپ نے کوئی راستہ طے نہیں کیا اور محنت کیے جا رہے ہو تو ممکن ہے کہ یہ محنت فضول جائے۔ پہلے راستہ طے کرو، پھر خوب محنت کرو۔ محنت تو بلندیوں پر جانے کے لیے چاہیے، نیچے گرنے کے لیے تو صرف ہاتھ چھوڑنے ہیں۔ جو اللہ پاک کی خاطر ڈٹا رہتا ہے، اللہ پاک کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ انسان ایک دن میں تو ساری محنت نہیں کر سکتا، البتہ اگر وہ روز تھوڑی تھوڑی محنت کرتا رہے تو وہ ایک نہ ایک دن کسی بڑی منزل تک پہنچ جائے گا۔ تم زندگی میں کتنے بھی مایوس کیوں نہ ہو، پھر بھی کچھ نہ کچھ اچھا ضرور کر سکتے ہو، اور ہر روز کچھ نہ کچھ اچھا کرتے رہنا ہی زندگی میں امید پیدا کرتا ہے۔ انسان کو راحتیں حاصل کرنے کے لیے تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، پھر راحتوں کو برقرار رکھنے کے لیے پھر تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ لیکن ایک امید ہے کہ جہاں راحتیں ہمیشہ کے لیے ہوں گی اور وہ جنت ہے، اس لیے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اس دنیا میں اللہ پاک نے آپ کو ہر چیز پر اختیار نہیں دیا، کئی لوگ اور ایسی چیزیں ہیں جن پر آپ کا بس نہیں، اس لیے ان کے بارے میں پریشان نہ ہوا کریں۔ آپ بس وہی کریں جو آپ کے بس میں ہے۔ اپنی توجہ سب سے پہلے تمہیں اپنے آپ کو سدھارنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ اللہ پاک سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ پاک کتنا بڑا ہے۔ جو تھا اچھا تھا، جو ہے بہتر ہے، جو ملے گا بہترین ہوگا۔ نہ امید بھی نہ ہونا کبھی بھی، کیونکہ اللہ پاک کے پاس کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ پاک بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدتر سے گزارتا ہے۔ جب معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دو تو معاملے اور اللہ پاک کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے، اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے رب ملتا ہے۔ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند، اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن اگر ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل ساجمہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔